اور وہ سارا اپنی طرف سے خرچہ اٹھاتا ہے ان کا. وہ مہرو کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. اس کو کہتا ہے کہ بس آپ آرام کریں اور آنٹی کا خیال رکھیں, میں ہوں نا یہاں پر سنبھالنے کے لیے, آپ فکر نہ کریں, میں سب کو سنبھالوں گا. مہرو کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے. وہ اس کی اس عادت کی وجہ سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ شاہ نواز سے ایسا ویسا کچھ نہیں کہے گی کیونکہ اس نے اس کی اتنی مدد کی ہے. وہ ہمیشہ اس کو الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی, لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کو کچھ نہیں کرے گی اور نہ ہی گھر والوں سے اس کے خلاف کوئی بات سنے گی. جب یہ سب لوگ اپنے ان کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو مہرو کا بہنوئی وہاں پر آتا ہے اور وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے, ہم سے یہ بات کیوں چھپائی. جس پر مہرو انہیں کہتی ہے کہ یہ بات بتانے والی تھی, آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پھر آپ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کو کیوں نہیں بتایا. اس کے بہنوئی اسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکیلی ہی اپنی ماں کو لے کر ہر طرف پھرتی رہو, اب تم لڑکی ہو اور اپنا خیال رکھو. میں نے تمہاری ماں سے اتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کی شادی کروا دیں. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں اس کی شادی کروا کیوں نہیں دیتی, آخر کب تک اس کو سر پر چڑھا کر رکھیں گی, ہر جگہ یہ اکیلی پھرتی رہتی ہے, میں نے اسے کل بھی دیکھا تھا ہاسپٹل میں جاتے ہوئے اکیلا. اس طرح سے تمہارا بار بار اکیلے جانا اچھی بات نہیں ہے, جب تمہاری منگنی کر دی ہے تو تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی. مہرو ان سے کہتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ آہستہ بھی تو بول ہی سکتے ہیں, اتنا چلا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے. جس پر اس کا بہنوئی اسے کہتا ہے کہ میں چلا کر ہی بات کروں گا, تمہاری ماں کو بھی تو پتا چلے کہ تم باہر کیا کچھ کرتی بھی رہی ہو. مہرو ان سے کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کری کہ جس کی وجہ سے گھر کی عزت پر کوئی بات آئے, میں صرف اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. جس پر اس کے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے کہ تم کس کا کتنا خیال رکھنا چاہتی ہو. وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مہرو اپنی ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. وہ اپنے بہنوئی سے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, میں سب کچھ سنبھال لوں گی. تو اس کا بہنوئی کو وہ بہت مشکل سے چپ کرواتی ہیں, جس پر انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید اب چپ نہ کریں اور بہت زیادہ شور کریں گے. وہاں پر رافع بھی آ جاتا ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جب وہ وہاں آ کر بیٹھتا ہے تو رافع ان سے کہتا ہے کہ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے. سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس دوران رافع کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی مہرو کی ماما کا سارا خرچہ شاہ نواز نے اٹھایا ہے اور ہاسپٹل کا بل بھی اسی نے دیا ہے. جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. جب مہرو اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور جا کر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے بتایا نہیں کہ شاہ نواز نے آنٹی کا سارا بل پے کیا ہے. مہرو سے کہتی ہے ہاں تو اس میں کیا ہو گیا, انہوں نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا, اگر تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے. جس پر رافع سے کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم شاہ نواز سے پیسے لوگی. وہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے, اس نے زبردستی بل دیا ہاسپٹل کا. اور رافع سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ہاسپٹل بھی آیا تھا اور اس نے بل دیا ہے. مہرو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا, تم ملے ہی کب ہو مجھ سے, اور تم نے رافع سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ہیلپ لینی چاہیے تھی, نہ کہ تم نے اسے جا کر مدد لیتی. شاہ نواز مہرو کی ماما کے ساری ہاسپٹل کی فیس جمع کروا دیتا ہے اور سارا خیال ان کا رکھتا ہے, اور وہ سارا اپنی طرف سے خرچہ اٹھاتا ہے ان کا. وہ مہرو کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. اس کو کہتا ہے کہ بس آپ آرام کریں اور آنٹی کا خیال رکھیں, میں ہوں نا یہاں پر سنبھالنے کے لیے, آپ فکر نہ کریں, میں سب کو سنبھالوں گا. مہرو کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے. وہ اس کی اس عادت کی وجہ سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ شاہ نواز سے ایسا ویسا کچھ نہیں کہے گی کیونکہ اس نے اس کی اتنی مدد کی ہے. وہ ہمیشہ اس کو الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی, لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کو کچھ نہیں کرے گی اور نہ ہی گھر والوں سے اس کے خلاف کوئی بات سنے گی. جب یہ سب لوگ اپنے ان کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو مہرو کا بہنوئی وہاں پر آتا ہے اور وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے, ہم سے یہ بات کیوں چھپائی. جس پر مہرو انہیں کہتی ہے کہ یہ بات بتانے والی تھی, آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پھر آپ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کو کیوں نہیں بتایا. اس کے بہنوئی اسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکیلی ہی اپنی ماں کو لے کر ہر طرف پھرتی رہو, اب تم لڑکی ہو اور اپنا خیال رکھو, میں نے تمہاری ماں سے اتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کی شادی کروا دیں. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں اس کی شادی کروا کیوں نہیں دیتی, آخر کب تک اس کو سر پر چڑھا کر رکھیں گی, ہر جگہ یہ اکیلی پھرتی رہتی ہے, میں نے اسے کل بھی دیکھا تھا ہاسپٹل میں جاتے ہوئے اکیلا. اس طرح سے تمہارا بار بار اکیلے جانا اچھی بات نہیں ہے, جب تمہاری منگنی کر دی ہے تو تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی. مہرو ان سے کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ آہستہ بھی تو بول ہی سکتے ہیں, اتنا چلا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے. جس پر اس کا بہنوئی اسے کہتا ہے کہ میں چلا کر ہی بات کروں گا, تمہاری ماں کو بھی تو پتا چلے کہ تم باہر کیا کچھ کرتی بھی رہی ہو. مہرو ان سے کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کری کہ جس کی وجہ سے گھر کی عزت پر کوئی بات آئے, میں صرف اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. جس پر اس کے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے کہ تم کس کا کتنا خیال رکھنا چاہتی ہو. وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مہرو اپنی ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. وہ اپنے بہنوئی سے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, میں سب کچھ سنبھال لوں گی. تو اس کا بہنوئی کو وہ بہت مشکل سے چپ کروا
करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है? सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी मेहरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज़ ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मेहरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज़ ने आंटी का सारा बिल पे किया है। मेहरू उसे कहती है हाँ, तो इसमें क्या हो गया? उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? जिस पर राफ़े उसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज़ से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया है हॉस्पिटल का। और राफ़े से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। मेहरू उसे कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे? और तुमने राफ़े उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज़ मेहरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो मेहरू को कुछ भी नहीं करने देता। उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फ़िक्र ना करें, मैं सबको संभालूंगा। मेहरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज़ से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो मेहरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई? जिस पर मेहरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको क्यों नहीं बताया? उसके बहनोई उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो। मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती? आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी? हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है? जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूँगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। मेहरू उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज़्ज़त पर कोई बात आए, मैं सिर्फ़ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेहरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है? सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी मेहरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज़ ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मेहरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज़ ने आंटी का सारा बिल पे किया है? मेहरू उसे कहती है हाँ, तो इसमें क्या हो गया? उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? जिस पर राफ़े से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज़ से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया है हॉस्पिटल का। और राफ़े से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है? मेहरू उसे कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे? और तुमने राफ़े उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज़ मेहरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो मेहरू को कुछ भी नहीं करने देता। उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फ़िक्र ना करें, मैं सबको संभालूंगा। मेहरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज़ से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था
تھا کہ وہ اب उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो मेहरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर मेहरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो। मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। मेहरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। मेहरू उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेहरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफे भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफे उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफे को ये बात पता चलती है कि उनकी मेहरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मेहरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज ने आंटी का सारा बिल पे किया है। मेहरू उसे कहती है हाँ तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफे उसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया हॉस्पिटल का। और मैं राफे से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। मेहरू उसे कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे, तुम और तुमने राफे उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज मेहरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो मेहरू को कुछ भी नहीं करने देता, उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभालूंगा। मेहरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो मेहरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर मेहरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो, मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। मेहरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। मेहरू उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मेहरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफे भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफे उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफे को ये बात पता चलती है कि उनकी मेहरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब मेहरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज ने आंटी का सारा बिल पे किया है। मेहरू उसे कहती है हाँ
हाँ تو اس میں کیا ہو گیا, انہوں نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا, اگر تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے. جس پر رافع سے کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم شاہ نواز سے پیسے لوگی. وہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے, اس نے زبردستی بل دیا ہاسپٹل کا. اور رافع سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ہاسپٹل بھی آیا تھا اور اس نے بل دیا ہے. مہرو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا, تم ملے ہی کب ہو مجھ سے, اور تم نے رافع سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ہیلپ لینی چاہیے تھی, نہ کہ تم نے اسے جا کر مدد لیتی. شاہ نواز مہرو کے ماما کے ساری ہاسپٹل کی فیس جمع کروا دیتا ہے اور سارا خیال ان کا رکھتا ہے, اور وہ سارا اپنی طرف سے خرچہ اٹھاتا ہے ان کا. وہ مہرو کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا, اس کو کہتا ہے کہ بس آپ آرام کریں اور آنٹی کا خیال رکھیں, میں ہوں نا یہاں پر سنبھالنے کے لیے, آپ فکر نہ کریں, میں سب کو سنبھال لوں گا. مہرو کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے, وہ اس کی اس عادت کی وجہ سے خوش ہو جاتی ہے, اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ شاہ نواز سے ایسا ویسا کچھ نہیں کہے گی, کیونکہ اس نے اس کی اتنی مدد کی ہے. وہ ہمیشہ اس کو الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی, لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کو کچھ نہیں کرے گی, اور نہ ہی گھر والوں سے اس کے خلاف کوئی بات سنے گی. جب یہ سب لوگ ان کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو مہرو کا بہنوئی وہاں پر آتا ہے, اور وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے, ہم سے یہ بات کیوں چھپائی. جس پر مہرو انہیں کہتی ہے کہ یہ بات بتانے والی تھی, آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پھر آپ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کو کیوں نہیں بتایا. اس کے بہنوئی اسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکیلی ہی اپنی ماں کو لے کر ہر طرف پھرتی رہو, اب تم لڑکی ہو اور اپنا خیال رکھو. میں نے تمہاری ماں سے اتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کی شادی کروا دیں. وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں اس کی شادی کروا کیوں نہیں دیتی, آخر کب تک اس کو سر پر چڑھا کر رکھیں گی, ہر جگہ یہ اکیلی پھرتی رہتی ہے, میں نے اسے کل بھی دیکھا تھا ہاسپٹل میں جاتے ہوئے اکیلا. اس طرح سے تمہارا بار بار اکیلے جانا اچھی بات نہیں ہے, جب تمہاری منگنی کر دی ہے تو تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی. مہرو ان سے کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ آہستہ بھی تو بول ہی سکتے ہیں, اتنا چلا کر بولنے کی کیا ضرورت ہے. جس پر اس کا بہنوئی اسے کہتا ہے کہ میں چلا کر ہی بات کروں گا, تمہاری ماں کو بھی تو پتا چلے کہ تم باہر کیا کچھ کرتی بھی رہی ہو. مہرو ان سے کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کری کہ جس کی وجہ سے گھر کی عزت پر کوئی بات آئے, میں صرف اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. جس پر اس کے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے کہ تم کس کا کتنا خیال رکھنا چاہتی ہو. وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مہرو اپنی ماں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, وہ اپنے بہنوئی سے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, میں سب کچھ سنبھال لوں گی. تو اس کا بہنوئی کو وہ بہت مشکل سے چپ کرواتی ہیں, جس پر انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید اب چپ نہ کریں اور بہت زیادہ شور کریں گے. وہاں پر رافع بھی آ جاتا ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. جب وہ وہاں آ کر بیٹھتا ہے تو رافع ان سے کہتا ہے کہ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے. سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس دوران رافع کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی مہرو کی ماما کا سارا خرچہ شاہ نواز نے اٹھایا ہے, اور ہاسپٹل کا بل بھی اسی نے دیا ہے. جب اسے یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. جب مہرو اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور جا کر اسے پوچھتا ہے کہ تم نے بتایا نہیں کہ شاہ نواز نے آنٹی کا سارا بل پے کیا ہے. مہرو اسے کہتی ہے ہاں تو اس میں کیا ہو گیا, انہوں نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا, اگر تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے. جس پر رافع سے کہتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم شاہ نواز سے پیسے لوگی. وہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے, اس نے زبردستی بل دیا ہاسپٹل کا. اور رافع سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ہاسپٹل بھی آیا تھا اور اس نے بل دیا ہے. مہرو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا, تم ملے ہی کب ہو مجھ سے, اور تم نے رافع سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ہیلپ لینی چاہیے تھی, نہ کہ تم نے اسے جا کر مدد لیتی. شاہ نواز مہرو کے ماما کے ساری ہاسپٹل کی فیس جمع کروا دیتا ہے اور سارا خیال ان کا رکھتا ہے, اور وہ سارا اپنی طرف سے خرچہ اٹھاتا ہے ان کا. وہ مہرو کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا, اس کو کہتا ہے کہ بس آپ آرام کریں اور آنٹی کا خیال رکھیں, میں ہوں نا یہاں پر سنبھالنے کے لیے, آپ فکر نہ کریں, میں سب کو سنبھال لوں گا. مہرو کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے, وہ اس کی اس عادت کی وجہ سے خوش ہو جاتی ہے, اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ شاہ نواز سے ایسا ویسا کچھ نہیں کہے گی, کیونکہ اس نے اس کی اتنی مدد کی ہے. وہ ہمیشہ اس کو الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی, لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کو کچھ نہیں کرے گی, اور نہ ہی گھر والوں سے اس کے خلاف کوئی بات سنے گی. جب یہ سب لوگ ان کے گھر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو مہرو کا بہنوئی وہاں پر آتا ہے, اور وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آنٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے, ہم سے یہ بات کیوں چھپائی. جس پر مہرو انہیں کہتی ہے کہ یہ بات بتانے والی تھی, آپ لوگوں کو پتا تو ہے کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, پھر آپ بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو آپ کو کیوں نہیں بتایا. اس کے بہنوئی اسے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکیلی ہی اپنی ماں کو لے کر ہر طرف پھرتی رہو, اب تم لڑکی ہو اور اپنا
ख्याल रखो, मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महर उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महर उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी महरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब महरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज ने आंटी का सारा बिल पे किया है। महरू से कहती है हाँ तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफिल से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया है हॉस्पिटल का। और मैं राफिल से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। महरू से कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे, और तुमने राफिल से कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज महरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो महरू को कुछ भी नहीं करने देता, उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूँगा। महरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो महरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर महरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो, मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महर उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महर उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी महरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब महरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज ने आंटी का सारा बिल पे किया है। महरू से कहती है हाँ तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफिल से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया है हॉस्पिटल का। और मैं राफिल से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। महरू से कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे, और तुमने राफिल से कहता है कि
तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज महरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो महरू को कुछ भी नहीं करने देता। उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूं ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूँगा। महरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो महरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर महरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो। मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महरू उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी महरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब महरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज ने आंटी का सारा बिल पे किया है। महरू से कहती है हाँ, तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफिल से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया हॉस्पिटल का। और राफिल से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। महरू से कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे, और तुमने राफिल से कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती। शाहनवाज महरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो महरू को कुछ भी नहीं करने देता। उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूं ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूँगा। महरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो महरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर महरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो, मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि
मैं चिल्ला कर ही बात करूँगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महर उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज़्ज़त पर कोई बात आए। मैं सिर्फ़ अपने घरवालों का ख़्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख़्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है? सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी महरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज़ ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब महरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज़ ने आंटी का सारा बिल पे किया है। महरू उसे कहती है हाँ, तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफिल से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया था हॉस्पिटल का। और मैं राफिल से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। महरू उसे कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे। और तुमने राफिल से कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उसे जाकर मदद लेती। शाहनवाज़ महरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो महरू को कुछ भी नहीं करने देता, उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूँ ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फ़िक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूँगा। महरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज़ से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो महरू का बहनोई वहाँ पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर महरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली ही थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो। मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महरू उनसे कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूँगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महर उनसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज़्ज़त पर कोई बात आए, मैं सिर्फ़ अपने घरवालों का ख़्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख़्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ सँभाल लूँगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें लगता है कि वो शायद अब चुप ना करें और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे। वहाँ पर राफ़े भी आ जाता है, उन सब लोगों के साथ बैठ जाता है। जब वो वहाँ आकर बैठता है तो राफ़े उनसे कहता है कि आंटी की तबीयत कैसी है? सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जिस दौरान राफ़े को ये बात पता चलती है कि उनकी महरू की मामा का सारा खर्चा शाहनवाज़ ने उठाया है और हॉस्पिटल का बिल भी उसी ने दिया है। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब महरू अपने कमरे में जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और जाकर उससे पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि शाहनवाज़ ने आंटी का सारा बिल पे किया है। महरू से कहती है हाँ, तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जिस पर राफिल से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाहनवाज़ से पैसे लोगी। वो कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसने ज़बरदस्ती बिल दिया था हॉस्पिटल का। और राफिल से कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल भी आया था और उसने बिल दिया है। महरू से कहती है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम मिले ही कब हो मुझसे। और तुमने राफिल से कहता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, ना कि तुमने उससे जाकर मदद लेती।
शाहनवाज महरू के मामा के सारी हॉस्पिटल की फ़ीस जमा करवा देता है और सारा ख्याल उनका रखता है और वो सारा अपनी तरफ से खर्चा उठाता है उनका। वो महरू को कुछ भी नहीं करने देता। उसको कहता है कि बस आप आराम करें और आंटी का ख्याल रखें, मैं हूं ना यहाँ पर संभालने के लिए, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभालूंगा। महरू को उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी इस आदत की वजह से खुश हो जाती है और वो सोच लेती है कि अब वो शाहनवाज से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद की है। वो हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलती रहती थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो अब उसको कुछ नहीं करेगी और ना ही घर वालों से उसके खिलाफ कोई बात सुनेगी। जब ये सब लोग अपने उनके घर पर बैठे होते हैं तो महरू का बहनोई वहां पर आता है और वो आकर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि आंटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमसे ये बात क्यों छुपाई। जिस पर महरू उन्हें कहती है कि ये बात बताने वाली थी, आप लोगों को पता तो है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको क्यों नहीं बताया। उसके बहनोई उसे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेली ही अपनी माँ को लेकर हर तरफ फिरती रहो, अब तुम लड़की हो और अपना ख्याल रखो। मैंने तुम्हारी माँ से इतनी दफ़ा कहा है कि इसकी शादी करवा दें। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ इसकी शादी करवा क्यों नहीं देती, आखिर कब तक इसको सर पर चढ़ा कर रखेंगी, हर जगह ये अकेली फिरती रहती है, मैंने इसे कल भी देखा था हॉस्पिटल में जाते हुए अकेला। इस तरह से तुम्हारा बार बार अकेले जाना अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी मंगनी कर दी है तो तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। महरून से कहती है कि भाई आप ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है कि अम्मी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप आहिस्ता भी तो बोल ही सकते हैं, इतना चिल्लाकर बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस पर उसका बहनोई उसे कहता है कि मैं चिल्लाकर ही बात करूंगा, तुम्हारी माँ को भी तो पता चले कि तुम बाहर क्या कुछ करती भी रही हो। महरून से कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करी कि जिसकी वजह से घर की इज्जत पर कोई बात आए, मैं सिर्फ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। जिस पर उसके बहनोई उसे कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम किसका कितना ख्याल रखना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि महरू अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बहनोई से कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो उसका बहनोई को वो बहुत मुश्किल से चुप करवाती हैं, जिस पर उन्हें